Hello students, this is class 7 science chapter number 13, that is motion and time. Okay, in this video we are going to learn about, from today we are going to learn about motion. What is the meaning of motion? What is the meaning of object at rest and object in motion? And important terms related to motion like speed and time. Okay, so let us start the explanation of this topic. Okay, this is your NCERT textbook. I am going to read it and simultaneously explain all the topics that we are going to see in it. Okay, so let us start the chapter. In class 6 you learnt about different types of motion. You learned that motion could be along a straight line, it could be circular, or it could be periodic. Can you recall these three types of motions? Okay, which three types of motions are explained here? There are three. Means in previous year we have studied motion. Motion means what? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मोशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है. मोशन. What is the meaning of motion? When we talk about the word motion, we consider that the position of object is changing with respect to time. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कंसिडर किया कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ओके, और एक रॉक कंसिडर करते हैं ज़मीन पे रखा हुआ. 1 मिनट पहले वहीं पे था, 2 मिनट बाद में वहीं पे है, 3 मिनट बाद में वहीं पे है, 1 घंटे के बाद में भी वहीं पे है ना, और दूसरे दिन सुबह देखा तो भी वहीं पे है. इट मीन्स वॉट? द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दिस ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड हियर, इट इज रिमेनिंग एट द सेम प्लेस फॉर एवर. Then we said that the object is at rest. Okay, what we call it? We call it as the object is at rest. If the position of object is not changing with time, we say that the object is at rest. Rest की definition लिखनी है आपको बुक में. मैं जैसे बता रही हूँ वैसे लिखो. हेडिंग डालो object at rest, object at rest, और उसमें क्या लिखना है आपको? Write the definition. If the position of object is not changing with time, if the position of object is not changing with time, then the object is said to be at rest. Okay, लिख लिया? अगर नहीं लिखा होगा तो अभी फिर से लिख लो. हाँ, when the position of object is not changing with time, it is said to be at rest. It is said to be at rest. इसके एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हो आप? when the object is at rest के एग्जाम्पल्स. राइट फर्स्ट एग्जाम्पल. what? A stone lying on the earth. A stone lying on the earth is an example of object at rest. Okay, now let us study the second definition, that is motion. Motion means what now? Motion means what? If the position of object is changing with time. If the position of object is changing with time, object की position अगर time के साथ साथ change हो रही है, then we say that the object is in motion. For example क्या बोल सकते हैं हम? अगर कोई मॉस्किटो है, मॉस्किटो रैंडमली मूव हो रहा है अपने प्लेस पे, है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं? कंटिन्यूसली जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे मॉस्किटो की पोजीशन चेंज होती है ना. दैट इज एग्जांपल ऑफ मोशन. ए कार मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन. सेकेंड एग्जाम्पल लिखो. यू हैव टू राइट दिस एग्जाम्पल्स इन टू योर नोटबुक. ओके, ए कार मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, it is in motion. Okay, when you are walking in the garden in any particular direction, you are in motion. Why? Because your position is continuously changing with time. Your position is what? Continuously changing with time.
ओके, सो ये दो डेफिनेशन हमने देखी थी, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और ऑब्जेक्ट एट मोशन की, कब? इन द प्रीवियस ईयर। अभी इसके बाद में वी हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के अलग अलग एग्जांपल्स हमने स्टडी किए थे, है ना, अलग अलग टाइप्स हमने स्टडी की थी, जिसमें 3 तरह के मोशंस हमने स्टडी किए थे कि पहला था स्ट्रेट लाइन मोशन, सेकेंड वॉज सर्क्यूलर मोशन एंड थर्ड वॉज पीरियोडिक मोशन। Okay, these different types of motion we have considered in the previous class. Circular motion is also a type of periodic motion. ठीक है, तो जो मोशन हमने कंसिडर किए थे, फिर से हमारा जो मोशन था, मोशन को वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 कैटेगरीज। मोशन इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। पहला जो मोशन होता है दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। पहला मोशन जो है उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, और दूसरा मोशन जो हम कंसिडर करते हैं दैट इज कॉल्ड एज नॉन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक मतलब, पीरियड मतलब एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम जिसके बाद में कोई चीज़ रिपीट होती है, देन इट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। जैसे स्कूल में हमारे पीरियड्स होते हैं, पहला पीरियड आपका है सपोज इंग्लिश का, 30 मिनट्स का पीरियड है, उसके बाद में 30 मिनट का ड्यूरेशन खत्म होने के बाद में आपका दूसरा पीरियड स्टार्ट होता है, फिर से 30 मिनट तक के वो चलता है, फिर तीसरा पीरियड स्टार्ट होता है ना। तो ये जो चीज़ें हैं इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड एज पीरियड? बिकॉज इट इज रिपीटिंग आफ्टर सम टाइम इंटरवल। ओके, इट इज रिपीटिंग आफ्टर सम टाइम इंटरवल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक। तो पीरियोडिक मोशन को डेफिनेशन के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? द मोशन, राइट डाउन, ये चार्ट निकालो, मोशन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। ठीक है, उसके बाद में पीरियोडिक मोशन, राइट द डेफिनेशन। पीरियोडिक मोशन क्या बोलेंगे इसको? द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन बोलेंगे, राइट। एग्जाम्पल्स, पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल्स हम 3 कंसिडर कर सकते हैं। कौन कौन से? पीरियोडिक मोशन में हम पहले जो मोशन की टाइप है वो कंसिडर करते हैं सर्क्यूलर मोशन, पीरियोडिक मोशन। देखो, पीरियोडिक मोशन में 3 एग्जाम्पल्स हम कंसिडर करते हैं। पहला है circular motion, second we consider rotational motion, and third example is oscillation, or it is also called as vibration, oscillation. Okay, these are 3 types of periodic motion. Circular motion हमारे एग्जाम्पल में एक सिर्फ सर्कुलर मोशन ही दिया है, सर्कुलर का मीनिंग पीरियोडिक कंसिडर किया है हमने, लेकिन there are different types of motions which are periodic and not circular. एग्जाम्पल है उसका ऑसिलेशन। ठीक है, ऑसिलेशन का मीनिंग क्या है? ऑसिलेशन का मीनिंग है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे टू एंड फ्रो आगे जाता है, वापस मेन पोजीशन पे आता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, वापस मेन पोजीशन पे आता है, ऐसा जो मोशन है ना ऑब्जेक्ट का, देखो फिर से ये इस तरह से वाइब्रेट होते रहता है अपनी ही जगह पे, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट क्या होता है, वाइब्रेट होते रहता है, प्लेस उसकी चेंज नहीं होती, वही के वही। जैसे कि एक थ्रेड है, थ्रेड को मैंने पेंडुलम बांधा है और इधर से मैंने इसको पुश किया, पुश करने के बाद में क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, जैसे स्विंग होता है ना आपका, फिर वापस आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, फिर वापस आएगा, ऐसे कंटिन्यूस ये पेंडुलम क्या होते रहेगा, मूव होते रहेगा, राइट। दिस काइंड ऑफ मोशन वी कॉल एज ऑसिलेटरी मोशन. Oscillation is an example of what? It is an example of periodic motion. After oscillation, when we talk about circular motion, circular motion means क्या, जैसे कि एक कंसिडर करो, आपने एक पत्थर लिया, रॉक, उसको एक धागा बांधा, ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको उंगली से रब किया, मतलब उंगली से वुंड किया, और इसको जब आप गोल गोल ऐसे घुमाते हो तो ये जो रॉक है ये सर्कल में मूव होता है ना, ऐसे। ये जो मोशन है ऑब्जेक्ट का, ये मोशन मतलब आप यहाँ से इसको आप कंट्रोल कर रहे हो, कंट्रोल पॉइंट इसका ये सेंटर है,
ठीक है, और ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है, सर्कमफरेंस के अलोंग जा रहा है, सर्कल के। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज सर्क्यूलर मोशन। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज सर्क्यूलर मोशन। ठीक है, सर्क्यूलर मोशन और रोटेशनल मोशन में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जब ऑब्जेक्ट सर्क्यूलर मोशन परफॉर्म करता है ना, तो उसका जो एक्सिस है, देखो ये लाइन है, इस लाइन के अलोंग ये क्या हो रहा है, सर्कल में गोल 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 घूम रहा है। व्हेन वी कंसिडर रोटेशनल मोशन, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ये ऑब्जेक्ट के अंदर से पास होती है लाइन, और ऑब्जेक्ट इसके अलोंग राउंड में रोटेट होता है। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन। ठीक है, इसके दो एग्जांपल्स अगर हमने कंसिडर किया, एक्चुअली हम बहुत पहले से ये एग्जांपल्स को जानते हैं, जैसे कि सन और अर्थ का मोशन अराउंड द सन is an example of circular motion, और अर्थ खुद के अलोंग भी तो रोटेट होती है ना, revolution is circular motion and earth rotate around its own axis. This kind of motion of earth, this motion is called as rotational motion. This motion is called as what? Rotational motion. Okay, so when we talk about periodic motion, हमने periodic motion की definition लिखी, right? डेफिनेशन लिखी है, उसके एग्जाम्पल्स में 3 एग्जाम्पल्स लिखो। एग्जाम्पल्स सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड थर्ड कौन सा था, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेशन जब बहुत फास्ट होते हैं, देन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन। उसे वाइब्रेशन भी बोलते हैं। हमारा मोबाइल वाइब्रेट होता है। ओके, विच टाइप ऑफ मोशन इज परफॉर्म देयर, वाइब्रेशन मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। ओके, so these are three examples of periodic motion. उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालो नॉन पीरियोडिक मोशन। मोशन की दूसरी टाइप हमने क्या डिस्कस की थी, नॉन पीरियोडिक मोशन, राइट? What is the meaning of non periodic motion? The motion which do not repeat itself after equal interval of time. Okay, the motion which do not repeat itself after equal interval of time is called non-periodic motion. Is called non-periodic motion. इसका मीनिंग क्या है, जो मोशन रिपीट ही नहीं होता है, इट इज कॉल्ड एज नॉन पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई ट्रैवल कर रहा है जलगांव से, सपोज मुंबई गया, तो ये जो जाएगा, ये वाया रोड जाएगा, किसी तो भी रास्ते से जाएगा, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट एक है, एंड पॉइंट दूसरा है ना? दिस टाइप ऑफ मोशन इज नॉन पीरियोडिक मोशन। ओके, दिस टाइप ऑफ मोशन इज नॉन पीरियोडिक मोशन। द मोशन विच डू नॉट रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और विच डू नॉट रिपीट इटसेल्फ, टाइम नहीं भी बोला तो भी चलेगा, दैट मोशन इज कॉल्ड एज नॉन पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल क्या दोगे इसके एग्जाम्पल में आप बोल सकते हो मोशन विच डू नॉट रिपीट इटसेल्फ, तो इसका एक आएगा रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट जा रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन, या कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मतलब कर्व पाथ में ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, बट नॉट एग्जैक्टली सर्कल, then the motion is called as curvilinear motion. And third type of motion is random motion. रैंडम मोशन मीन्स नॉट इन ए फिक्स डायरेक्शन, कैसे भी कहीं जहाँ दिल करे वहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट मूव होता है, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड एज रैंडम मोशन। दीज आर 3 एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट नॉन लिनियर मोशन। चलो आगे बढ़ते हैं। सी, इन क्लास 6 you have learnt about different types of motion. You learnt that motion could be along a straight line, it could be circular or periodic. Can you recall these 3 types of motions? We have already recalled it. In table 13.1 gives some common examples of motion. Identify the type of motion in each case. Okay? Table 13.1 देखो तो यहाँ पे क्या दिया है, सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, एग्जाम्पल्स दिए हैं मोशन के, और उसको टाइप आपको लिखना है, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, सर्क्यूलर हो रहा है कि पीरियोडिक हो रहा है। ओके, जैसे मोशन
ऑफ सोल्जर्स इन द मार्च पास्ट। सोल्जर्स जब मार्च पास्ट करते हैं तो उनका मोशन कैसे होता है? सोचो इसके बारे में थोड़ा। सोल्जर मार्च पास्ट जब करते हैं तो सोल्जर मूव होते हैं स्ट्रेट लाइन में, जाते हैं ना। यू कैन से दिस एज ए स्ट्रेट लाइन मोशन, राइट। आप बोलोगे उनके हैंड्स कैसे जाते हैं सोल्जर्स के? आगे पीछे आगे पीछे। अगर हैंड्स का मोशन पूछा होता तो आप लिखते क्या? ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन, है ना। हम थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे, ऑसिलेटरी भी लिखेंगे अगर है तो, अदरवाइज पीरियोडिक तो होता ही है। बट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द मोशन ऑफ सोल्जर, हाँ, सो दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन। नेक्स्ट, बुलक कार्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। यहाँ पे तो दिया भी है कि द रोड इज स्ट्रेट, देयरफॉर द मोशन इज स्ट्रेट लाइन मोशन। राइट हियर इन वर्ड्स, राइट स्ट्रेट लाइन मोशन। थर्ड, हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन ए रेस। हैंड्स का मोशन कैसे होता है? एथलीट्स के हैंड्स कैसे मूव होते हैं? जब रनिंग करनी होती है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे पीछे मूवमेंट होती है ना। दिस टाइप ऑफ मोशन इज व्हाट वी कैन से इट इज ए ऑसिलेटरी मोशन। इसे वाइब्रेट लिखो या ऑसिलेटरी लिखो, एंड पीरियोडिक, बोथ आंसर यू हैव टू राइट। ओके, राइट हियर ऑसिलेशन and in bracket you write periodic. In bracket you write this is an example of periodic motion. Pedal of bicycle in motion. Bicycle के pedals कैसे मूव होते हैं? pedals की मूवमेंट सर्कल में होती है ना। बाइसिकल आगे स्ट्रेट लाइन में जाती है, उसके पेडल्स कैसे मूव होते हैं? सर्कल के अंदर मूव होते हैं। ओके, सो व्हाट यू कैन राइट? पेडल ऑफ बाइसिकल, it is circular. It is what? It is circular, and you can also say it is periodic. Periodic भी तो होती है because वही पाथ पे बार बार पेडल्स मूव होते हैं. So yes, it is circular as well as periodic. Next, motion of earth around the sun. Motion of earth around the sun कौन सा motion है? Yes, we have seen it in our example of circular motion. So write here circular motion, bracket में लिखो periodic motion. Okay, this is an example of circular motion, bracket में periodic motion. Motion of swing, swing means झूला, उसका motion कैसे होता है? Motion of swing again in forward backward, है ना, आगे जाता है पीछे आता है, this kind of motion. It is what? पहले लिखो oscillation. Motion of swing you can write oscillation first and then in bracket you write periodic motion. Okay, next, motion of a pendulum. pendulum का motion, pendulum पता है ना कैसे होता है? ऐसे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको एक नीचे बॉल अटैच होता है दिस इज कॉल्ड एज पेंडुलम. पेंडुलम का मोशन कैसे होता है? इन दिस वे, है ना. दिस मोशन इज ऑसिलेशन and it is also called as what? It is called as periodic motion. So write here oscillation as well as periodic. Okay, so in this way we have seen this table 13.1. ये आपको टेक्स्ट बुक के अंदर आपने फिल किया, अभी इसको नोटबुक के अंदर भी आपको क्या करना है? लिखना है. ठीक है. In it is common experience that the motion of some object is slow while that of some others is fast. मोशन को स्लो या फास्ट आप बोल सकते हो क्या? हम कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं, उनका जनरल में उनको आप स्लो या फास्ट कैसे डिवाइड करोगे बोलो तो? सपोज ये मेरी स्क्रीन है, स्लो या फास्ट. अगर मैंने आपको कोई ऑब्जेक्ट बताया तो उनके बारे में आप बोल सकते हो स्लो या फास्ट. कैन यू गेस? जैसे मैंने अगर आपको बोला कि हॉर्स की मूवमेंट कैसी होती है? हॉर्स स्लो मूव होता है करता है कि फास्ट? सिर्फ हॉर्स को बोलने से काम नहीं चलेगा, हमें कंपेयर करने के लिए कोई ना कोई उसको देना पड़ेगा. अगर मैंने हॉर्स के साथ साथ यहाँ पे काऊ लिखा तो नाउ यू कैन गेस, है ना. काउस जनरली स्लो होती है इन कंपैरिजन विथ हॉर्स. ओके, अगर मैंने चीता लिखा तो अब बोलो तो सबसे फास्ट कौन है इसमें? इसमें चीता सबसे फास्ट है,
उसके बाद में स्पीड आएगी हॉर्स की, उसके बाद में स्पीड आएगी काऊ की। ठीक है, अगर मैंने इसमें स्नेल ऐड किया तो स्नेल, गोगलगाय, ये सबसे स्लो होता है ना। तो जब आप बोलते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्लो है या फास्ट है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इट मीन्स दैट यू आर कंपेयरिंग द ऑब्जेक्ट्स विथ, मीन्स हाउ मच डिस्टेंस दे कवर इन हाउ मच टाइम। ठीक है ना। अगर मैंने आपको ये 4 लोगों की अगर मैंने रेस लगाई, देखो एक हॉर्स है आपके पास, एक काऊ है, काऊ पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि चीता भी सी से स्टार्ट होता है, और एक स्नेल है ना। तो मैंने इन चारों को डिस्टेंस दिया 100 मीटर का। तो 100 मीटर का डिस्टेंस है सपोज। आप कैसे बोलोगे कि स्नेल स्लो है और हॉर्स फास्ट है? क्योंकि ये 100 मीटर का डिस्टेंस हॉर्स बहुत कम समय में ट्रैवल करेगा और स्नेल को बहुत ज़्यादा समय लगेगा वो डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। ओके, सो हम क्या करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट फास्ट है या स्लो है, ये कंपेयर करने के लिए हम देखते हैं उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, और वो डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको क्या लगा, टाइम कितना लगा। ओके, तो डिस्टेंस और टाइम, ये 2 क्वांटिटीज चाहिए हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को फास्ट या स्लो डिसाइड करने के लिए। ओके, चलो थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं बुक में। Slow or fast? We know that some vehicles move faster than others. Even the same vehicle may move faster or slower at different times. कुछ vehicles जो होते हैं, अगर मैंने मतलब अगर बाइसिकल, और आपके पास बाइसिकल है, ओके, और आपके पास ये है बाइक है, कौन सी, मोटर बाइक है ना, तो क्या बोल सकते हो आप, दोनों में स्लो कौन है? बाइसिकल का जो है, बाइसिकल स्लो है इन कंपैरिजन विथ मोटर बाइक। ठीक है, और दूसरी चीज़, बाइसिकल आप एक पर्टिकुलर स्पीड से चलाते हो। अगर मुझे स्कूल में जाने के लिए 10-15 मिनट्स का समय है और मेरा घर अगर 5 मिनट के डिस्टेंस पे है, तो मैं बाइसिकल स्लो चला सकती हूँ। रमत गमत वी कैन गो इन टू द स्कूल। बट अगर समय कम है तो हम क्या करते हैं, वही बाइसिकल हम फास्ट भी चला सकते हैं। ओके, सो सम व्हीकल्स, हमारी भी तो ऐसे ही है ना, जब हम चलेंगे तो हमारी स्पीड कम होती है, हम स्लो भी चल सकते हैं, और घाई का समय है तो हम फास्ट भी क्या कर सकते हैं, मूव हो सकते हैं ना। सो दैट इज व्हाट एक्सप्लेन्ड हियर। वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर्स. Even the same vehicle may move faster or slower at different times. Make a list of 10 objects moving along a straight path. Group the motion of this object as slow or fast. How did you decide which object is moving slow and which is moving fast? So this is your homework today. क्या करना है देखो आपको, group the motion of make a list of 10 objects moving along a straight path. कोई भी 10 ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाओ जो स्ट्रेट पाथ में मूव हो रहे हैं. देन ग्रुप द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स एज स्लो और फास्ट. उसमें से कौन से स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट है और कौन से फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, दैट यू हैव टू ग्रुप. इसमें एक एग्जाम्पल के लिए मैं दे सकती हूँ, आप ह्यूमन बीइंग डाल सकते हो, मैन डाल सकते हो, बाइसिकल यू कैन ऐड, उसके बाद में बुलक कार्ट यू कैन ऐड, हॉर्स कार्ट, मोटर बाइक, कार, ट्रक, jet. You can add all this, you can add all these things into it, and then tell which objects are fast moving and which objects are slow moving. Okay, how did you decide which object is moving slow and which one is moving fast? If the vehicles are moving on the road in the same direction, we can easily tell which one of them is moving faster than the other. Let us look at the motion of vehicles moving on a road. हमें अभी कुछ vehicles की पोजीशन, अगर एक ही रोड पे जा रहे हैं तो उनकी पोजीशन देख के we can identify if it is moving slow or fast. See, activity 13.1.
Look at figure 13.1. It shows the position of some vehicle moving on a road in the same direction at some instant of time. Now look at figure 13.2. It shows the position of same vehicles after some time. From your observation of two figures, answer the following questions. Which vehicle is moving the fastest of all, and which one of them is moving slowest of all? The distance moved by object in a given interval of time can help us to decide which one is slower or faster. For example, imagine that you have gone to see off your friend at a bus stand. Suppose you start pedaling your bicycle at the same time as the bus begins to move. The distance covered by you after 5 minutes would be much smaller than that covered by the bus. Would you say that the bus is moving faster than the bicycle? Yes. हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये पिक्चर्स देखो. वी आर हैविंग टू पिक्चर्स. यहाँ पे दो पिक्चर्स हमें दिखाई दे रहे हैं. अभी यहाँ पे सारे व्हीकल्स को आपको क्या करना है, पोजीशन देखो. सारे व्हीकल्स ने कुछ समय के बाद भी डिस्टेंस कवर किया. हम पोजीशन वाइज देखेंगे. ये व्हीकल देखो, ग्रीन वाला व्हीकल, यू कैन सी. नए पिक्चर में उसकी पोजीशन नियर अबाउट सेम ही है ना. दूसरा थोड़ा सा मूव हुआ है. थर्ड थोड़ा सा मूव हुआ है, थोड़ा सा. ये वाइट देखो, नियर अबाउट थोड़ा सा आगे आया है ना. ये पहले यहाँ पे था, अभी थोड़ा आगे आया है. ओके. रेड यहाँ पे था, अभी नियर अबाउट वहीं पे है. वाइट, सी. प्लेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यू कैन मेक द पॉइंट ऑफ दिस रेफरेंस पॉइंट. ये रेफरेंस आपको यहाँ पे दिया है. ओके, दिया है ना, दिख रहा है ना. उसके हिसाब से प्लेस देखो सारे ऑब्जेक्ट्स की, आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा. ओके. यहाँ पे सारे जो व्हीकल से थोड़ा थोड़ा मूव होते हुए आपको नज़र आ रहा है ना. और ये ऑब्जेक्ट देखो आप, पहले कहाँ पे था, अभी इसकी प्लेस देखो आप, इसकी प्लेस चेंज हुई, नज़र आ रही है ना आपको. दूसरा ये ऑब्जेक्ट, इसकी प्लेस भी चेंज हुई. नाउ यू डू द कंपैरिजन कि कौन से ऑब्जेक्ट का प्लेस ज़्यादा चेंज हुआ. ओके. कौन से ऑब्जेक्ट की पोजीशन ज़्यादा चेंज हुई. मेरे ख्याल से मुझे ऐसे लगता है कि इसकी प्लेस ज़्यादा चेंज हुई है. आप इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा और देखो, कंपेयर करो और चेक विच व्हीकल, और कौन सा ऐसा है जिसकी प्लेस थोड़ी भी चेंज नहीं हुई. दैट also you have to find. Okay. So by checking the position of object, we can determine whether the object is moving slow or moving fast. Okay. सेकेंड इन्होंने एग्जाम्पल कौन सा दिया है देखो कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप आपके फ्रेंड को बस स्टॉप के ऊपर छोड़ने के लिए गए. ओके. और आपने, फ्रेंड आपका बस के अंदर बैठ गया. यहाँ पे आपकी बाइसिकल है, यहाँ पे बस है, बस थोड़ी सी आगे चली गई. ओके. और जिस मोमेंट पे आपने बाइसिकल चलाना स्टार्ट किया, उसी मोमेंट पे बस ड्राइवर ने बस चलाना स्टार्ट किया. दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. 5 मिनट के बाद में बस बहुत आगे निकल जाएगी. आपने कवर किया हुआ डिस्टेंस उसके कंपैरिजन में कैसे होगा, कम होगा, है ना. सो बाय यूजिंग दिस यू कैन से दैट द बस इज मूविंग फास्टर देन यू. ओके. बस इज मूविंग व्हाट, फास्टर देन यू. हाउ कैन यू टेल दिस? You can tell this by considering what? The bus cover more distance in 5 minutes and you are covering less distance in same time, that is 5 minutes. So we can say that the bus is faster and your bicycle is slower. Okay. So I hope you understand the meaning of fast and slow. इसके बाद का जो पॉइंट है, हम ये नीचे का पैराग्राफ पहले फिनिश कर लेते हैं. We often say that faster vehicle has higher speed. जब हम फास्ट व्हीकल का कौन सा कोऑर्डिनेट ज़्यादा होता है आपके कंपैरिजन में? स्पीड. स्पीड हम डिटेल में बाद में देखेंगे, पहले ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं, स्पीड को हम कल देखेंगे. We often say that the faster vehicle has a higher speed. In the 100-meter race,
in the 100-meter race, it is easy to decide whose speed is highest. One who takes shortest time to cover the distance of 100 meter has the highest speed. जिसको कम समय में एक गिवन डिस्टेंस जो कवर करता है उसकी स्पीड कैसी होती है, उसकी स्पीड हाईएस्ट स्पीड होती है. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फास्टर एंड स्लोअर. ओके, इसके बाद का जो कंसेप्ट है हम वो क्या करेंगे, नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे. तब तक के लिए टेक्स्ट बुक में से आपको जितना चैप्टर हमने पढ़ाया है वहाँ तक के रीड करना है. जो एक्टिविटीज़ करने के लिए बोली है दैट यू हैव टू डू इन दी होमवर्क. ओके, बाय.